Hare Krishna. Hare Krishna. So on behalf of HSL Layout, ISKCON HSL Layout, I welcome you everyone for the Sunday evening Bhagavad Gita classes. So I thank only Prabhu and Guru Gauranga Prabhu for giving me this opportunity to speak something on Bhagavad Gita. So today we are covering on Bhagavad Gita chapter 2.49. Can somebody say what is the chapter name of second chapter? Sankhya. Sankhya. No. Content of the classified. How many slokas are there in chapter 2? Yes. Anyone? No. 72. Yes. And what is the first chapter which we have already covered? Observing the way to face. Yes. How many shlokas were there? That is also 72. 46. Just to remember. Yeah. So today we are covering on 2.49. Okay, I'll start with Guru Pranam mantra and then we'll jump on to the slokas. Yeah. Om Jnanatimirandhasya Jnanajnanashalakaya Chakshurum Yena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalpainam Idam Shri Guru Shri Bharat Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Shagragatam Sahagana Sadhivam Sarvaitam Savradutam Parijasaitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pradhan Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitasha He Krishna Karuna Sindhu Deenabhaktu Jagatpate Gopesha Gopiva Kantam Vishramanu Sube Devi Rani Panchakalpatarvesha Kripa Sindhu Bhagiracha Patinan Pavani Vaishnavi Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravati Prachadini Nirvishesha Punyavadi Pashavani Shakarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gauravatta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Mukam Kavati Vacharam Pandamanga Tigriva, the Shri Guru Vinata, Shri Chaitanya. Hare Krishna. So, welcome everyone once again. So, we'll read the sloka 2.49. You can repeat it after me. Dure nahi avaram karma. Dure nahi avaram karma. Buddhi yoga dhananjaya. Buddhi yoga dhananjaya. Buddhav saranam manvicha.
बुद्धाव शरणम अन्विच्छा कृपणः फलहेतवः कृपणः फलहेतवः synonyms durena discard it at long distance he certainly avaram abominable karma activity buddhi yoga on the strength of Krishna consciousness. Dhananjaya, O conqueror of wealth, Buddha, in such consciousness, Saranam, full surrender, Anviksha, try for, Kripnaha, misers, Phalahitavaha, those desiring fruitive reasons. Translation, O Dhananjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service. And in that consciousness, surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. We'll read the purport also. Can somebody read it? Okay, I'll read it. One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagement save working in Krishna consciousness. As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to further entangled in material bondage. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the work to the cycle of birth and death. One should, therefore, never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquired by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. I read it Hindi also. So, how many devotees doesn't understand English? Yes. कितने लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है? सब वैसे ही इंग्लिश नहीं आती है? हाँ, उठा सकते तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा. सब ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दोनों संवाद करने का बराबर. तो ये भगवत गीता दूसरे अध्याय का है. भगवत गीता दूसरे अध्याय का नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार. So this chapter is known as contents of Gita summarized. So Anadi Jagannath Prabhu used to tell, so this is the whole summary of the entire Bhagavad Gita. So अगर आपके पास समय नहीं मिलता है तो केवल दूसरा अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा भगवत गीता का सारांश रूप में आपको जो है ज्ञान मिल जाता है. तो जब भी कोई व्यक्ति जो है अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनके लिए जो है दूसरा अध्याय आप उनके आत्मा के शांति के लिए जो है पढ़ सकते हैं. Somebody leaves the body for the satisfaction of the soul, you can read this chapter 2 because its contents is summarize everything. So I'll read in Hindi. इसका अनुवाद है. हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण करो. जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपणा है. तो इसका ये मतलब है. और हम लोग कुछ एक दो श्लोका जो है ऊपर के भी पढ़ेंगे ताकि हम
What was the last shloka which was covered here? 48. One shloka each day. 47. Okay. तो इसके पहले जो है हम लोग थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आज के श्लोका में आएँगे। आज के श्लोका स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल few stories such that we can connect and then we will jump on to the shlokas. So I'll start with shloka number 44 because it connects from here. So shloka number 45 says, "In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place." So anyone who wants to progress in devotional service, so this is the obstacles which is given here. So जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें जो है एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। एकाग्रता इन इंग्लिश वी से डिटर्मिनेशन. So three things which we can pray to the Lord. One is utsaha, dhair, nishchay. So whenever any festivals comes, we can pray to the Lord for giving these three things. Utsaha, dhair, nishchay. What the utsaha means? Excitement. Excitement. Any other words? So suppose Mataji's are there. So every day when you are cooking, do you feel nice or you feel boredom? अच्छा लगता है या डेली बोर हो लगता है एक ही चीज बार बार करने का? तो उसी तरह when we are coming to devotional service, in the starting when we are doing any work, जब भी कोई नया कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग में बहुत आनंद मिलता है, बहुत मजा आता है. लेकिन as we go onwards, what we feel, the same routine becomes boredom. So utsaha is very required in devotional service. If we don't have that itself, when we are new devotees coming, जब कोई नया भक्त आता है तो उसको देख के हमें क्या लगता है, इसमें such a enthusiasm, he is coming daily so excited, he is doing kirtan everything. So when we are seeing them, I'm not feeling the same bliss. मेरे अंदर वो same उत्साह नहीं है. So one prayer you can do is for उत्साह. Okay. धैर्य. धैर्य means पेशेंस. कोई भी काम करने के लिए जो है पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है ना? धैर्य नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा. सब्जी आप लोग बनाते हैं, सब्जी एक बार में बन जाती है. You go to market, you buy the vegetables, you come home, you wash, you cut, then put it in the stove, 1 hour, 2 hour, whatever is there. After that, you are able to offer it to the Lord and then have as a prasada. So any work you do, you need to have patience in order to complete that work. आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है उस कार्य को समापन करने के लिए. Last one is very important, which is known as determination. Determination means dhya nishchay. This is one thing which can take you from this side to that side. Any work you want to do, you need to have that firm determination in order to complete it. So we have got this human form of body in which we have got, and we want to go back home, back to God. So that determination we should have. So from childhood onwards to till now, we have so many goals in our life. इट्स कीप ऑन चेंजिंग. सो बचपन से लेके बड़े तक हम लोग का जो लक्ष्य है वो चेंज होते रहता है. लेकिन मनुष्य का जो जीवन हमें जो मिला है, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी टू हैव सम हायर पर्पस. व्हाट इज द हायर पर्पस? To go back home, back to God. In this shloka also we'll talk. So in this shloka, its talk is about so person who have this one point of intelligence that we have decided we have got this human form of life and we want to go back home, back to Godhead. So any work, whether if it is office work, whether it is business work, और whether it is घर का भी काम है, जहाँ पे भी जो भी काम करना है, तो वहां पे हमें क्या चाहिए? जब तक वो काम करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, धैर्य चाहिए. जब तक वो समापन नहीं होगा तो वो कार्य जो है कंप्लीट नहीं होगा. कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है? 100% होता है. इफ यू वांट टू कंप्लीट एनी वर्क, इट नीड्स 100%. सो इफ यू लीव द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, खाना बनेगा? So similarly, all of us, when we talk about Ajamila stories, everyone have heard about the Ajamila stories. And when we hear about those stories, we tell second chance, dusra chance. All of us here, we have got 84 lakh times Krishna have given us chances, not second time. 84 लाख बार भगवान श्री कृष्ण ने हमें मौका दिया है. 84 लाख योनि में घूमने के बाद हमें मानव का शरीर मिला है. When we read all the stories, we think it's only for Ajamila, not for us. We can go in this lifetime only. But we need to think we have already crossed 84 lakh species. 84 lakh times Krishna have given this opportunity. So we shouldn't waste this human form of life. So it's saying what is the obstacle? Obstacles is known as sense enjoyment. We want to enjoy. हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं. खाना खाते हैं तो भी खुश रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो भी खुश रहना चाहते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे खुश नहीं रहना चाहता है? कोई नहीं.
हम हर चीज में मजा ढूंढते हैं, आनंद आना चाहिए। बट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो दुनिया जहाँ पे आप रह रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज नोन एज दुखालम आशाशतम। ये दुखों का संसार है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं रह सकता है। तो आप गलत जगह पर क्या है, अपेक्षा करते अपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंस एंजॉयमेंट जो है ये लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड है और बोल रहे हैं कि जो इससे प्रभावित हो जाता है, तो जिसके लिए आपको मानव का शरीर मिला है, फॉर दोज विच यू हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ द बर्थ, भक्ति करने के लिए मिला है, उससे हम डिविएट होके क्या होते हैं, दूसरे रास्ता में भटक जाते हैं। तो दिस टॉक्स अबाउट द ऑब्स्टेकल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, 44 श्लोका। Then 45 shloka talks about karma kanda. See, there are do's and don'ts. एक काम जो होता है, कार्य जो होता है, शास्त्र के अनुसार जो होता है करना चाहिए, एक होता है शास्त्र के अनुसार नहीं करना चाहिए। तो वेदास जो है जिससे हमें ज्ञान मिलता है, वेदा जो है, आप वेदा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है पूजा करना चाहिए। 15.15 श्लोका में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि संविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम आपहंसा वेदस्य सर्वर अहम एव विद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। I am seated in everyone's hearts, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. हम लोग ये दूसरा लाइन पे जाएंगे, वेदस्य सर्वे अहम एव विद्यो वेदांत कृत वेद से। तो जब हम वेद पढ़ते हैं, इवन व्यासदेव जी जब वेद लिखे थे, तो वेद लिखने के बाद जो है वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि लोग जो है कर्म कांडा पे ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? अब वेद में देखेंगे, सारे जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, सारे तकलीफ का दवाई जो है वेद में मेंशन है। All the medicine, any problems if you are going into your life, all the solutions is given into the Vedas. So what used to happen? The people generally used to open the Vedas, see their problems, and then do the worship. Particular वेद में जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है, क्या पूजा करने से जो आपकी शादी हो जाएगी? आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो पूजा करिए बच्चे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समबडी इज नॉट एबल टू हैव अ हाउस, और धन नहीं है उसके पास, यू डू दिस, यू विल हैव। सो जो भी प्रॉब्लम है, आपकी शरीर स्वस्थ नहीं है, इवन आयुर्वेदा ऑल्सो टेक्स फ्रॉम वेदास। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज मेंशन इन द वेदास, यू टेक, व्हाट हैपेंड, people used to open the veda, after reading that they used to have that solution and they used to continue enjoying their life. So in that opportunity, nobody got that opportunity to read the entire Veda. So what happened? If you go at the end of Veda, what is Krishna is saying? By all the Vedas, I am to be known. I am the compiler of the Vedanta and I am the knower of the Vedanta. तो अंत में क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि पूरा वेद का सारांश क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना है, भगवान की पूजा करना है। तो वेद में जो है पुष्पन वाचितम बोलते हैं, फ्लावरी लैंग्वेज रहता है, दैट्स मीन्स उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और हमको लगता है कि ये पूजा करने के बाद हम इसको कर्म कांडा बोलते हैं, कि मैं पूजा कर रहा हूँ, इससे मुझे जो है ये लाभ प्रतिष्ठा मिलेगा। तो 44 में क्या भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म कांड से ऊपर उठ के जो है आप भगवान की जो है आप भक्ति करो। तो वेद का जो पर्पस है ये यही है कि वेद पढ़ने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण को जो भी हम अपने कर्म कर रहे हैं उसकी भक्ति कर सके। वेद का द पर्पस इज ऑल इज, श्रील प्रभुपाद से, जिस तरह एक समुद्र में पानी रहता है, एक नदी में पानी रहता है, एक कुएं में भी पानी है, एक कुएं के पानी में भी वो पानी पीने के बाद आपकी प्यास बुझ सकती है, चाहे समुद्र में जाए या नदी में जाए। तो उसी तरह ये भगवत गीता जो है पूरे भागवतम और पूरे सॉरी पूरे वेदस का जो है समरी रूप में, सारांश रूप में, इसको मात्र पढ़ने से आपको जीवन का जो भी प्रॉब्लम है आपको मिल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, पूरा वेद का एक रूप में सारांश क्या है, भगवान को समर्पित करना है ना। तो भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि किस तरह से है कर्म करना चाहिए। देखिए, कर्म का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं कर्म क्या मतलब आपके अकॉर्डिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्म? जो काम एक्शन एक्शन, एक्शन रिएक्शन। आप क्या बोल रहे हैं माता जी? काम करते से कार्य करो। एंड यू आर सेइंग समथिंग, ओके। सो व्हाट डज कर्म मीन? प्रभु हैज सेड एक्शन। हाँ, एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया, है ना। एक्शन का मतलब हुआ क्रिया। वॉट एवर एनी एक्शन यू परफॉर्म यू विल हैव बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट, मतलब उसका रिएक्शन होगा।
तो आप क्रिया करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया होगा, उसको रिएक्शन बोलते हैं। अब कर्म का मतलब क्या होता है, हम लोग बचपन से सुने अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे अच्छे फल प्राप्त करके, बट हमें ये कोई नहीं बताता स्वर्ग के बाद वापस में धरती पे आना पड़ता है, ठीक है ना। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, हम लोग जो जानते हैं, एक बोलते हैं अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। तो जो बोलते हैं, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग रहता है उसको कर्मा कहते हैं, ठीक है ना। जो शास्त्र में लिखा हुआ डूज, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नियम कानून, जो जैसे मान लीजिए भारत के संविधान में हम रहे ट्रैफिक, अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको उसका पालन करना है, तो वो डूज हो गया, उसको कर्मा कहते हैं। जो शास्त्र के विपरीत है उसको क्या कहते हैं, विकर्मी, ठीक है। तो आप शास्त्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्मा मिलेगा, पुण्य कर्मा मिलेगा। और शास्त्र के विपरीत करेंगे तो क्या मिलेगा, पाप कर्म मिलेगा, दंड मिलेगा। बिल्कुल सही। तो क्या मिलेगा, स्वर्ग के बदला कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। तो गरुड़ पुराण में मेंशन है, इट्स मेंशन इन द गरुड़ पुराण, व्हेन अ सोल लीव्स फ्रॉम द बॉडी एंड गो टू वेयर, कहाँ जाते हैं। तो अगर विष्णु दूत आ रहे तो गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। अगर इसी भौतिक संसार में अगर जन्म लेना है तो क्या कहते हैं, यमदूत लेने के बाद यमराज के पास जाते हैं। यमराज के पास जैसे जाएंगे इतना देर में 48 मिनट लगता है। जो आत्मा रहता है बोलती कहाँ है, यमराज उसके शरीर पे जो है डंडा मारते हैं, डंडा मारते हैं, and then says your body is lying there. The soul again comes back and wants to go inside the body, but he is not able to go. That's the reason उस आत्मा जो शरीर रहता है उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है। उसके बाद 12वीं मनाते हैं हम लोग। 12वीं मनाने के बाद 365 दिन, 348 दिन लगता है उसको, आत्मा को फिर से यमलोक में पहुंचने पे। यमलोक के पास जैसे पहुंचते हैं तो उसके पुण्य और पाप के मापदंड पे दे इक्विवेलेंट, ओके, दे डू दिस वन। इफ योर पुण्य इज मोर यू गो टू स्वर्गलोका, इफ योर पापा इज मोर यू गो टू नरकलोका। तो पाप जो व्हाट इज स्वर्गलोक में जाते हैं, जहां पे आप स्वर्ग में जाने के बाद मान लीजिए 80% आपका पुण्य है, 20% इज द पापा, 80% यू गो टू स्वर्गलोक, वहां पे एंजॉय करने के बाद फिर से क्या होगा, 20% आप फिर से धरती पर आएंगे या तो नरक लोक में आएंगे। वापस से अगर मान लीजिए 80% क्या है, पाप है, 20% पुण्य है, तो यहाँ पे आप नरक में जाके वहां पे फिर 20% जो है यहाँ पे धरती में आएंगे। तो जो भी होता है धरती पे, आप पाप आप पुण्य जो है, जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं जीवन जो क्या है, नरक से भी बदतर है। होता है ना, जब हमें दुख हाथ मिलता है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, दिस लाइफ इज नॉट मोर देन हेल, वी आर लिविंग लाइक इन अ हेल ओनली। सो हियर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि 3 प्रकार के जो है कर्म जो रहते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आकर्मा। मतलब ना तो आपको पुण्य मिलता है ना आपको पाप मिलता है। तो भगवान की जो भी सेवा करते हैं, वट एवर एक्टिविटीज यू डू इज नोन एज भक्ति योगा और डिवोशनल सर्विस। एनी एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू कृष्णा, और एनी एक्टिविटीज विच यू डू, और योर कॉन्शियसनेस और आपकी चेतना जो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है श्रील प्रभुपाद ने दिया है अंतरराष्ट्रीय भावना कृष्णा अमृत, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी काम करते हैं तो इसके क्या बन जाता है, आकर्मा। ना आपको पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, इसी के कारण आप भगवान के धाम जो है आप जा सकते हैं। इसको कर्म को समझना इंपॉर्टेंट है आज की श्लोका को लेने के लिए। गंगा नदी में कितने लोग ने नहाया है, क्यों नहाने जाते हैं, हमने बचपन से सुने हैं कि गंगा नदी में जाते हैं, अगर हम नहाते हैं तो पाप धो देते हैं। लेकिन पाप धो देने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, all our sinful activities are being erased off, what we are left with, yes, punya pious activities are left, what about those, हम हमेशा पाप को धोना चाहते हैं, पुण्य को नहीं धोना चाहते। क्यों, हमको मालूम है पुण्य को धोने से क्या होगा, हम अच्छा से इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अच्छा पुण्य रहेगा तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, अच्छा दिखेंगे, अच्छा धनवान होंगे, जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये भौतिक संसार जहां पर आप जितना भी धनवान, जितना भी ऐश्वर्य हो, आप कभी भी जो है सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए गंगा से भी सबसे महान कौन है, गंगा रिवर इज देयर, देयर इज वन मोर रिवर विच इज मोर ग्लोरियस देन मदर गंगा। त्रिवेणी
Any guess? काव्य River. Yamuna. Why? Why Yamuna, Mother Yamuna is more glorified than Ganges? कृष्ण का जन्म हुआ था ना उसमें, और जमुना वृंदावन गुजरात तो यमुना क्यों महान है? तो क्योंकि उसका पापा जी लेके चले गए थे जमुना में से कोठा से हम्म। Yamuna has got a benediction मालूम है that anyone who takes bath in Yamuna, what will happen? Your punya and papa both will get eradicated. पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाएगा। जब पाप और पुण्य जब दोनों समाप्त हो जाएगा तब भगवान के धाम आप जा सकते हैं। जमुनानगर That's the reason Krishna consciousness, whatever activities we do, what happens? All our punya and papa is there. Example, खाना अभी हम लोग देखिए यहाँ पे आप मुरली प्रभु, गुरु गोरंगा प्रभु, आप सभी को बोलते होंगे कि प्रसाद को जो है पहले भोग लगाना फिर खाना है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम एव तोयम, है ना? तो अगर ये जो भाव से जब जो है आपको भगवान को आप अर्पित करते हैं, रोटी जब होते हैं तो क्या होता है, कीड़ा मकोड़े रहते हैं, छोटे सब्जी काटे तो मर जाते हैं, उसका पाप कौन लेगा? हम लोग का चेतना शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम भगवान को पहले चढ़ाते हैं कि चलिए आप शुद्ध कर दीजिए, फिर जो मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी पाप नहीं मिलेगा। कृष्णा एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना यही है कि जो भी चीज हमें मिला है, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा धन हो, सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच वी नीड टू डोटेल इज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं, इसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। और दिस 47, 48 एंड 49 श्लोका टॉक्स अबाउट हाउ वी कैन प्रैक्टिस, किस तरह हम अभ्यास कर सकते हैं निष्काम कर्म योग। तो देखिए, कर्म जब भी हम करते हैं तो उसका पाप और पुण्य मिलता है, लेकिन कर्म करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फल सोचते हैं, पुण्य सोचते हैं। 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रुपया आएगा? कितना मिलेगा? कोई भी यहाँ पर है म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते, कोई भी देखते हैं जिसमें कम रहता है वहां पे डालते हैं। सब्जी लेने जाते तो कोई भी रहते हैं जहां पे ज्यादा सब्जी रहता है वहां से आप लेने जाते हैं, है ना? जहां से सस्ती मिलती है, जहां पे हमें प्रॉफिट हो, वहां पे हम करते हैं। तो हम कभी कभी आगे के चैप्टर में जब पहुंचेंगे 14 के बाद, तो देखेंगे हम भक्ति भी करते हैं तो हम 3 गुणों में करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सब चीज में हम अपना फायदा देखते हैं, तो इसको कर्म कांड कहते हैं। निष्काम कर्म योग का मतलब है आप अपेक्षा करते हैं, उससे कुछ रिटर्न नहीं करते हैं। सबसे शुद्ध उदाहरण क्या है इस भौतिक जगत में, जिसको आप समझ सकते हैं? व्हाट इज वन गुड एग्जांपल व्हिच यू कैन से इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? मदर्स लव। Mother's love toward the children. See, father or anyone we have in relation, any relation you take, we have an give and take policy, आदान प्रदान करता है। शादी में भी जाते तो क्या कहते हैं, उसने मेरे शादी में क्या दिया था? एक ग्लास दिया था, मैं भी ग्लास ही दूंगा, है ना? गिव एंड टेक पॉलिसी रहता है। लेकिन माता बोलते हैं अगर इस भौतिक संसार में अगर एक शुद्ध प्रेम अगर देख सकते हैं, जो भगवान का प्रेम सभी के लिए है, वो एक माता और बच्चे के बीच में है। माँ कोई अपेक्षा नहीं करती है, मदर डजंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द चाइल्ड। So the same way, Nishkam Karma Yoga also means when we do any activity, we don't think about the fruitive activities or the fruit results we will be getting. हमें क्या फल मिलेगा उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो 47 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of actions. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to undoing your duty. बहुत बेहतरीन श्लोक है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, बोलते हैं भगवत गीता क्या है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस इतना ही जानते हैं, लेकिन पूरा श्लोक का कभी नहीं पढ़े हम लोग। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, उसमें है तो हम लोग को क्या करना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य क्या करना है? एक व्यक्ति का जो है उसका, हर एक का अपना अपना कर्तव्य है। माता अगर खाना नहीं बनाएगी तो क्या रहेंगे? पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। अगर प्रभु या कोई भी माता जी जो भी अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो नहीं कमाएंगे तो क्या रहेगा? घर भूखा रहेगा। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य है। तो आज की श्लोका में मैं इसको कवर करूंगा कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, व्हाट इज अवर रियल responsibility as a human being we should do. What Krishna is saying, you are not entitled to the fruits of action. आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो।
सेकेंड पॉइंट, नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। हमें ये समझना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का मेरे कारण हो रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई अच्छा काम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मेरे कारण हुआ है। जब गलती हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसने किया इसकी वजह से है ना। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और कभी भी उससे आसक्त नहीं हो कि अपना कर्तव्य को करने के लिए उससे आसक्त नहीं रहे। ऐसा भी होगा ना कि हम काम ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कर्म, जब फल की चिंता ही नहीं करना है तो कर्म क्यों करेंगे, कर्म छोड़ देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इस तरह अपना ड्यूटी जो भी आप कर रहे हैं कर्तव्य के माध्यम से कीजिए, उससे आसक्ति नहीं रखिए। 47 में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। 48 श्लोक में बोल रहे हैं, परफॉर्म योर ड्यूटी equipoise to Arjuna, abandoning all the attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इसको, योगा। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है योगा बोल रहे हैं। योगा अन्य अन्य प्रकार के भी होते हैं। ये 49 श्लोका में जो है भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योगा के बारे में बात कर रहे हैं। योगा का अर्थात क्या होता है, जोड़ना योग मिलजुल के रहना। मिलजुल के रहना। तो 4-5 कीड़े मकोड़े मिलजुल के रहते हैं, उसको भी योगा कहते हैं। योग करना, एडिशन एडिशन ऐड करना। ऐड करना, क्या ऐड करना और क्या नहीं ऐड करना। योग का अर्थात यहाँ पे होता है योगा। रियल जो योग का मतलब होता है कि हमारा जो मन होता है उसको भगवान के ऊपर जो है क्या करना है, केंद्रित करना को ही योगा करता है। मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार में क्या है, आ गए हैं, है ना। भौतिक संसार में आ गए हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्णा नित्य रस, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना है। बट कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पे आके किसकी सेवा कर रहे हैं, ये पति की सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चे की सेवा कर रहे हैं, जिससे कोई अपेक्षा हो उससे उसकी जवाब। सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने के बाद अंतिम में क्या मिलता है, सेवा मेवा मिलता है या गाली मिलता है, तुमने किया ही क्या है, यही सुनने मिलता है ना। आपने किया ही क्या पूरा जिंदगी में मेरे लिए, थैंकलेस बोलता, थैंकलेस। है ना। तो यहाँ पे रियल योगा का मतलब ही है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण को जो है अपने आप को स्वयं को उनसे कनेक्ट करेंगे, उसको जो है योगा बोलते हैं। योगा का अनेक अनेक माध्यम है, जिसको ज्ञान योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। सबसे उच्च जो है भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण क्या है, पहले कर्म योग के बारे में बोल रहे हैं कि व्यक्ति को जो है अपना कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जो 38 से 53 का जो श्लोका है, ये भगवान क्यों बता रहे हैं। अर्जुन, तीसरा कारण था, अर्जुन बोल रहा था कि इतने लोगों को मैं मार दूंगा तो इसका पाप मुझे मिलेगा। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कि हे अर्जुन, अर्जुन कह रहा था, Arjun was saying that I don't want to fight. Instead of killing so many people, if I kill so many people, I'll get the sinful reaction. Instead, I can abandon these activities and go to jungle. If I go to jungle, I won't get any sinful activities. Krishna is telling him, first you should do your work. As a क्षत्रिय, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि आप जो है अपना युद्ध करो। जैसे आप अपना अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले भगवान श्री कृष्ण बोले कर्तव्य, जब हम अपना कर्तव्य करेंगे, इफ यू डू अवर ड्यूटीज, व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली वी विल थिंक ऑफ रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, आप अपना कर्तव्य को निभाओ समभाव रह के, समत्त योगा उच्यते। क्या बोल रहे हैं, अबैंडिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर्स, जय हो विजय हो आप उसकी चिंता मत करिए। इस तरह से जब काम करेंगे, इसी को योगा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जब योगा करते हैं तो क्या करते हैं, निष्काम कर्म योग करना है आपको, मतलब बिना फल की अपेक्षा किए हुए कि आपको हानि हो या। अब हम आज की श्लोका में आते हैं। इस आज की श्लोका में यहाँ पे बोल रहे हैं, हो धनंजय, keep all abominable activities far distance by devotional service and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who enjoy, or those who want to enjoy the fruits of their work are misers. 2-3 कहानी हम सुनते हैं, फिर हम लोग इस श्लोका पे आते हैं ताकि आप लोग जो है कनेक्ट कर सकें क्यों ये श्लोका भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं इसमें। तो 10वें स्कंद में इन द 10th कैंटो इट्स कम्स, देयर इज सो मेनी स्टोरीज आर देयर, जहाँ पे मृग महाराज की कहानी आती है। श्रीमद् भागवतम में जो है
मृग महाराज के 10वां स्कंद में कहानी आते हैं, जहाँ पे महाराज जो है बहुत बड़े पदवी में थे, और कहते हैं कि उनके राज में जो है कोई भी दुख नहीं था, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छे से धनवान थे, और स्वयं सिंहासन बोलते हैं ना, स्वर्ण बुद्ध, व्हाट डू वी कॉल, स्वर्ग लोका, देयर इज अ गोल्डन बुक इन विच एवरीवन हु डज द गुड कर्मा देयर नेम्स विल बी रिकॉर्डेड देयर। सो मृग महाराज भी थे, उनका भी नाम जो है उसमें सम्मिलित था। तो एक बार की बात है, उनके पास बहुत सारे गौशाला थे, ही यूज्ड टू हैव सो मेनी ऑफ काउस, so every time he used to donate other cows. So what happened? One time he donated one cow up to one brahmana, and somehow this brahmana, this cow, nowadays we don't see. Earlier days they used to be have the whole ground used to be a forest. So cow used to gaze, मतलब खुला छोड़ देते थे, गाय जो इधर उधर जाते रहते थे, तो उनका गाय जो है खो गया। Somehow it happened, this cow again came back to Maharaj Mrig Gaushala only. And one more Brahmana came for donation of cow. The same cow was donated to the second Brahmana. Somehow it happened by a chance, the same Brahmana came to the same village. दोनों ब्राह्मणा एक ही गांव के थे। सेकंड ब्राह्मणा जब वो आया तो वो कहा कि अरे ये तो मेरा गाय है, तो बोला दिस इज नॉट योर काउ, दिस काउ इज बीन डोनेटेड बाय द किंग, महाराज ने मुझे दान किया। बोला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मणा होके झूठ बोलते हो, ये मेरा गाय है। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड quarreling, then they reached to हाँ कोर्ट महाराज के पास पहुंचे। कोर्ट में चले महाराज के पास गए, महाराज के पास जाके फिर क्या देखे, बोले कि ये जो है, एविड देखे कि सेम गाय जो है। कंक्लूजन में, सारांश में कहानी बता रहा है, आई एम कमिंग कटिंग शॉर्ट द स्टोरी सच दैट वी कैन कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस श्लोका आल्सो। समरी में ये आया कि वो महाराज जो है उसको बोले कि तुम ये दूसरा गाय ले लो, मैं इसके बदले तुमको 2 गाय, 3 गाय, 10 गाय, 15 गाय सब देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी वो जो ब्राह्मण आई सेड नो, आई डोंट वांट टू टेक, आई वांट दिस काउ ओनली। दूसरा ब्राह्मणा को he also said the same thing. What ultimately happened? Both of the brahmanas left. Nobody took that cow. Similarly, this Meriga Maharaj, what happened? Since he have whatever we do, if you go to Gaya also, और nowadays if you do a गांव दान जब करते तो क्या करते हैं, एक ही गाय को रख देता है, उसी गाय को बार बार दान दान चलते रहता है। Tell me, पहले के समय में if you do a donation, you can't take it back. So you have done some aparadha. So for that aparadha, what happened? Yamraja, Yamraja said you need to go through some prashit or some sinful activities. So Muni Maharaj told, in this lifetime only I want to go through. In this lifetime only I want to go. I don't want to take birth. So by the providence, वो गिरगिट बन गया, थोड़ा सा अपराध किए, है ना। पूरा जिंदगी भर पुण्य करते रहे, छोटा सा अपराध हुआ, उसके कारण वो गिरगिट बन गए, और कितना करोड़ों साल जो है वो गिरगिट बन के रहे। तो फिर उनको जो है आशीर्वाद मिला कि यू विल बी बॉर्न इन द्वारका। गिरगिट भी बनेंगे तो कहाँ, द्वारका में आपको भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धार करेंगे। ओके, भगवान श्री कृष्ण जो उद्धार करेंगे तो वो कुएं में बन के जो है उस तरह से उनका जो है उद्धार होता है। पॉइंट ये है कहने का कि हम सभी जो है क्या करते हैं, कर्म पे रहते हैं, कर्म के फल की चेतना में रहते हैं, हमेशा कर्म करने में रहते हैं, सकाम कर्म करते हैं, और क्या सोचते हैं उससे क्या फल मिलेगा। पूरा जिंदगी भर पुण्य किए, छोटा सा एक पाप किए तो देखिए गिरगिट बन गए। एक कहानी। दूसरा कहानी जो है, अ, ये भी श्रीमद् भागवतम में आता है, जहाँ पे नहुष महाराज रहते हैं। कोई सुने हैं नहुष महाराज का कहानी? नहुष महाराज की कहानी। होना होगा बोल जाए नहुष महाराज थे, वो भौतिक संसार में बहुत बड़े राजा थे, और इंद्र महाराज की जो सिंहासन जो रहते, देखते हैं कई बार इंद्र महाराज छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होते हैं तो सिंहासन छोड़ के चले जाते हैं। तो देन दे स्टार्टेड हु विल बिकम किंग, they started searching for a eligible king who can become a king and take the rule, take a ruler who will become king and then will rule the Swarga Loka. Then the whole Devi Devtas started searching and they were not able to find a qualified king.
Then they somehow came to this material world, Earth, and they found Nahush, uh, Nahush Maharaja somewhat eligible. They said we should send him. Then Mahush Raja was there. Then they appointed him as a king. So जब राजा बने तो फिर क्या हुआ? सारे देवी देवता और सारे लोग जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे राजा रहते हैं। अब राजा बनने के बाद बोले कि इंद्रदेव की पत्नी का नाम क्या था? सची माता। तो बोल रहे हैं कि वो पत्नी भी मुझे चाहिए। अब मैं राजा बना हूं तो राजा की पत्नी भी तो होनी चाहिए ना। बोल रहे अभी तो इंद्रदेव तो गए हैं, कुछ दिन के बाद आएंगे, अब कुछ दिन के लिए है। तो देखिए, अर्थात ये था कि वो एक राजा बनने के लिए भी आपको पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है। आपको पुण्य चाहिए कुछ भी चीज अच्छा करने के लिए। जब आप शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा शरीर आपको मिलता है, दिखने में आप अच्छा है, अगर आपके पास धन है, अच्छा परिवार है, दैट मीन्स आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। तो आप समझ लिए इंद्र का सिंहासन में बैठने के लिए आपको क्या करना? 100 यज्ञ करना पड़ता है, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, है ना? उसके बाद क्या होता है, ये इंद्रदेव के सिंहासन में बैठा और उसको भोगना चाह रहा है। उसको भोगना चाहता है, देन बृहस्पति बोलते हैं ये गलत चीज है, लेकिन उसके बाद में बोलता है राजा बना है तो मैं भोगूंगा। तो सची माता कहती है कि इफ यू वांट टू एंजॉय देयर इज वन कंडीशन, यू शुड कम इन अ पालकी, एंड वो पालकी जो है ब्राह्मणा लेके आएंगे, है ना? तो वहां पे वो क्या करते हैं, ही गिव्स ऑल ऑर्डर्स। बोलते ब्राह्मणा आप लोग का काम क्या है? सिर्फ खाते हो बैठते हो और तो कुछ करते नहीं हो, तो आप जो है चलो थोड़ा सा काम कर लो। बोलते नहीं ये तो हमारा काम नहीं है। बोलते नहीं, अब महारानी बोली है तो फिर उसके लिए तो ये करना पड़ेगा। Then what happened? A palki was arranged, and in that the Maharaja Nahush sat away, and in that when he sat away, this Brahmanas, this Brahmanas was Brahmanas was taking palki। वो बहुत भारी था पालकी। पहले के जमाने में अगर देखेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में अगर आप देखे होंगे तो पालकी रहता है, तो वो भारी भारी होता है। तो ब्राह्मण जब ले जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जो है नहुस महाराज जो है उनको बोलते हैं और लात भी मार देते हैं कि जल्दी लेके चलो। अब ब्राह्मणा को लात मारना मतलब क्या हो गया? पाप है, पाप अपमान हो गया। पाप पाप। अपमान हो गया, तो फिर उनको श्राप मिलता है कि वो जो है सर्प योनि में जन्म लेंगे। How much time? सो उनको श्राप मिलता है, तो फिर क्या होते हैं नेक्स्ट, उसी समय नेक्स्ट जन्म में क्या बनते हैं? अजगर बनते हैं, सांप बनते हैं। एक ही जगह पे अजगर के क्या काम है? एक ही जगह पे लेटा रहता है। वहां पे एंजॉय क्या करने गए थे? रानी को लेने गए। सिंहासन एंजॉय करने गए थे स्वर्ग लोक का। कितना जन्म तक पुण्य किए और क्या मिला? ठीक है। एक तीसरा छोटा सा कहानी लेते हैं, फिर हम आज की श्लोका में आते हैं। ठीक है। हिरण्यकशिपु की आपने कहानी सुना होगा। कितने साल तपस्या किए थे हिरण्यकशिपु? सतयुग में 1 लाख मनुष्य जो है 1 लाख साल तक जीता था। ठीक है। 60,000 कहीं पे मेंशन है, 60,000 कहीं पे मेंशन है, 36,000 अलग अलग युग होता है जिसके हिसाब से जो सब सही है। तो अगर 36,000 भी ले या 60,000 साल भी ले, अलग अलग सतयुग में अलग अलग युग होता है जिसमें अलग अलग कैलकुलेशन होता है। तो 1 लाख के हिसाब से 36 या 60,000 तक ले। तो हिरण्यकशिपु क्या किए थे? तपस्या की थे। कैसा? घोर तपस्या। ही डिड अ तपस्या लाइक दैट ही वाज स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड होल ऑफ हिज बॉडी ओनली वाज बोन्स। उनके शरीर में जो भी मांस था, जितने कीड़े मकोड़े थे वो खा लिए थे, सिर्फ हड्डी बची हुई थी। और उस हड्डी से जो है इतने साल तक तपस्या की है। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी से क्या वर मांगे? अमरदान। ब्रह्मा जी से आई एम नॉट माई सेल्फ मॉर्टल, हाउ कैन आई गिव यू मॉर्टेलिटी, इमोर्टेलिटी, सॉरी। वो सेठ ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से मैं भी भगवान में 8वें अध्याय में आता आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनः जन्म। बोलते ब्रह्म लोक से नीचे तक चींटी तक भी जो है ये 4 चीज से जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। ठीक है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं आपको अमर दान नहीं दे सकता हूँ। तो क्या बोलते हैं उसको? इस तरह से वो वर मांगते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। और इतना साल घनघोर तपस्या करते हैं, कितना साल वो आनंद ले पाते हैं?
कोई बता सकते हैं कितना साल हिरण्यकशिपु आनंद लेते हैं? केवल 5 साल, सिर्फ 5 साल। जैसे ये तपस्या पूर्ण करके आते हैं इंद्रदेव के ऊपर, स्वर्ग लोक पे ऊपर कब्जा करते हैं, ही ऑक्यूपाइड, एंड देन प्रहलाद महाराज वाज born, and we see as Prahlad Maharaj was born when he was 5 years of age, Narasimha Dev appeared and he killed upon 36,000 या 60,000 साल तपस्या करने के बाद 5 साल सिर्फ आनंद ले पाए। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप जो भी सकाम कर्म करते हैं, ये तीनों स्टोरी में आप देखे होंगे, अभी तक का जो भी श्लोक जो हम लोग आगे का डिस्कस किए हैं, वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सकाम कर्म से अच्छा होता है निष्काम कर्म योग। क्योंकि जब हम सकाम कर्म करते हैं तो उसमें हमें फल की अपेक्षा रहती है। तो यहाँ पे इसलिए इसमें श्लोक में बोल रहे हैं दूर ही अवरम कर्मा, है ना, बुद्धि योग धनंजया बुद्धा शरणम अन्विच्छा कृपणः फला हेतवः। तो क्या बोल रहे हैं, दूर से ही क्या करना है, अवरम अवरम कर्मा यहाँ पे बोल रहे हैं, जो बोलते हैं जो खराब गतिविधियां जो है, यहाँ पे इस श्लोक में दो चीजें श्रील प्रभुपाद बताते हैं। अवरम कर्मा का दो अर्थात होता है, एक जो होता है जो शास्त्र के अनुसार जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो डोंट्स है, क्या क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इस श्लोक में जो मेंशन है अवरम कर्मा का मतलब है कि इसके पहले के श्लोक में जो हम लोग बोलते थे कर्म कांडा, कर्म कांडा का अर्थात है जो पूजा पाठ हम जो करते हैं जिससे हम फल की अपेक्षा रखते हैं वो हमें नहीं करना है, और हमें क्या करना है, बुद्धि होता है। यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं बुद्धि होगा। हम कृष्णा भावना अमृत में रह के बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 10 रुपया चढ़ा रहे भगवान, 10 लाख रुपया दे देना, ये कर्म कांड में आता है। क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का आप सेवा कर रहे हैं, तो भगवान आपसे बार बार, जब आप गिरी गोवर्धन का परिक्रमा लेंगे तो भगवान आपके पीछे पीछे घूमेंगे, बोलेंगे आपको क्या चाहिए बोलो। तो ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओ धनंजया, ओ कॉन्करर, धनंजय का ये भी हम डिस्कस करेंगे। बोल रहे हैं ये चेतना में रह के शरणम शरणम अनविच्छा ट्राई फॉर माइजर्स फला दोज डिजायरिंग फॉर फ्रूटी। तो यहाँ पे कृपणा का मतलब होता है माइजस, कृपणा का मतलब हम लोग समझेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोका में बता रहे हैं कृष्णा भक्ति बस वर्सेस सकाम कर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा भक्ति एंड सकाम कर्म, इसकी तुलना में ये श्लोका में डिफरेंस दे रहे हैं कि भक्ति की तुलना में इन कंपैरिजन टू द भक्ति योग सकाम कर्मा इज वेरी तुच्छ और वेरी नेग्लिजिबल। सो बुद्धि योगा यहाँ पे यहाँ बोल रहे हैं, बुद्धि योग क्या हो गया, वो एक समुद्र का, इट्स फुल ऑफ ओशन, एंड सकाम कर्मा और ड्रॉप ऑफ वाटर। Sakam karma, whatever this is there, it's like a drop of water. Why? We'll understand this also. Just keep in mind. So कर्म क्या है? सकाम कर्म हो गया जो अकॉर्डिंग टू वेदास है, वेद के अकॉर्डिंग जो रहता है उसको डूज एंड डोंट्स कहते हैं। जो हम भोगना चाहते हैं, जो भोगना मतलब क्या हो गया, फल के जो चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूटिव एक्टिविटीज, इसी को बोलते हैं कर्म कांडा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं बुद्धि योग, यहाँ पे बोल रहे हैं ना बुद्धाव, बुद्धाव यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो बुद्धि योग जो है वेद में भी मेंशन है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण को बीच में रखना है। यू हैव टू पुट कृष्णा इन द सेंटर फॉर हिज हैप्पीनेस, नॉट फॉर अवर्स। इसी को बुद्धि योग कहते हैं या भक्ति योग भी कहते हैं, तीनों है। तो when people use his buddhi, intelligence to work for Krishna consciousness, then he can come out of the cycle of birth and death. And anyone and everyone, when he uses this intelligence for his own sense enjoyment, which is known as Indra Tripti, then it becomes a Sakam Karma. So 9.22 में भगवान श्री कृष्ण जो है इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं। LIC ऑफ इंडिया जो है ना, इसी श्लोका से जो अपना टैगलाइन दिया है, जिंदगी के बाद भी जिंदगी की साथ भी। क्यों है, यहाँ पे भगवान बोलते हैं योगाशयम वहम अहम, बोल रहे हैं फॉर दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन मेडिटेटेड ऑन माय ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि हम भक्ति करेंगे, यहाँ पे मुरली प्रभु आप सभी को कॉल करते हैं कि कम से कम सप्ताह में आप एक दिन अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए, भगवान का संग लीजिए। किसका फायदा होगा? डिवोटी का।
स्वयं का फायदा होगा। क्यों आपका फायदा होगा? वो ठीक है। क्योंकि भगवान श्रील प्रभुपाद आगे की श्लोका में हमने जो कवर करके बोलते हैं, जो इस पथ पे रहता है देयर इज नो लॉस। जो भक्ति योग के पथ में रहता है उसका कोई भी हानि नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप जो भी काम बाहर में करेंगे आपको प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन भक्ति योग में क्या है? आप मान लीजिए संडे के बदला आप यहाँ पे सेंटर में नहीं आके बोलेंगे मेरा व्यवसाय है, मुझे वहां पे 2 रुपया कमाना है। वो जो 2 रुपया कमा रहे हैं, ये शरीर छूटते के साथ आपका पैसा यहीं पे रह जाएगा। करेक्ट। है ना? ABCD फिर से पढ़िएगा आप। नया जन्म मिलेगा अगर मनुष्य का मिला तो। आप ये नहीं बोलेंगे इस जन्म में मैं डॉक्टर था, नए जन्म से मैं MBBS से आगे स्टार्ट करूंगा, नहीं। लेकिन भक्ति आप नहीं बोलेंगे। भगवान नोट करे कि सैटरडे को संडे को आप यहाँ पर आए हैं, आपका एक एक बार भगवान का नाम लिए, 1% आपने भक्ति किया, नेक्स्ट जन्म में फिर से आप 2% से आप स्टार्ट करें, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही बोल रहे हैं, योगा श्याम अहम है। तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना कि भक्ति करेंगे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो नहीं है मैं उसकी भी रक्षा करूंगा, दूंगा, मैं आपको प्रदान करूंगा, और जो है उसकी भी रक्षा करूंगा। सबसे बड़ी रक्षा भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? जब आप भक्ति करते हैं, व्हेन यू डू डिवोशनल सर्विस, कृष्णा प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट? जन्मा मृत्यु जरा व्याधि। Krishna takes in charge of your life and he will dovetail your life in such a way, only thing you need to do is surrender. तो आप भगवान से जो है आज कक्षा के बाद प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको समर्पित कर रहे हैं। मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए क्या अच्छा है नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, आई एम सरेंडरिंग टू यू, वॉट एवर इज गुड फॉर मी यू टेक माई लाइफ इन दैट वे, दैट इज सरेंडर। हम क्या करते हैं? भगवान मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपकी माला कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं। दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति वो क्या हो जाता है? बिजनेस बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद इज प्रिजर्विंग व्हाट दे हैव। भगवान जो है आपकी जो है आने आप फिर से 84 लाख योनि में ना जाए, भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 9.22 में भगवान ये बोलते थे योगा क्षेम है, तो भगवान रिक्वायरमेंट क्या है? हमें प्रोटेक्शन करना है। डे बिफोर यस्टरडे सनातन प्रभु हैज सेंट वन मैसेज आल्सो इन ग्रुप व्हेन ही सेइंग कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू इफ यू कॉल, इफ यू कॉल फॉर प्रोटेक्शन देन ओनली कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो भगवान कैसे आके आपकी रक्षा करेंगे? There's a wonderful quote you can read. वो तो So महाभारत में भी था। द्रौपदी was कौरवा उसका पकड़ते थे, उसने बोला ये भगवान सिर्फ भगवान क्या है? अर्जुन ने हेल्प नहीं किया, और भीम ने हेल्प नहीं किया। She called Lord Krishna, then he gave the sari. correct, Am I right? correct. Right. That is the surrender. So हाँ, द्रौपदी के लिए क्या सरेंडर था? भगवान को याद किया। द्रौपदी के लिए क्या सरेंडर था? द्रौपदी के लिए सरेंडर जो था, जब वो समझ गई कि कोई वहां पे मुझे सभा में हेल्प नहीं कर सकता, देन सी लेफ्ट हर सारी। दैट इज द सरेंडर पॉइंट। अर्जुन के लिए क्या सरेंडर है? युद्ध करना। तो हम सभी के लिए अपना अपना कुछ ना कुछ सरेंडर पॉइंट है, हमको वो समझना है। I have वेरी गुड। you have too much knowledge. सो यहाँ पे हमको समझना है कि किस तरह से हमारा सरेंडर पॉइंट क्या है। जब हम उसको समझ जाएंगे तब हम भगवान की तरफ जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो टोटल सरेंडर, अवश्य राखिबे कृष्णा। जो भी कंडीशन हो जाए, जिस परिस्थिति में भी रहे, भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करेंगे। हम क्या करते हैं? इतना धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं, किस लिए? रोटी कपड़ा मकान, यही ना। जो छोटा सा चींटी जो हम अपने आंख से नहीं देख पाते हैं, उसको भी तो भगवान खाना दे रहे हैं। तो भगवान क्या हमारे लिए नहीं देखेंगे? तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ। कृष्णा विल प्रोटेक्ट वॉट एवर कंडीशन माइट बी देयर, एंड वी शुड नॉट लीव अवर भक्ति वॉट एवर इट माइट हैपन। सो इस कंडीशन में जब हम रहेंगे तब भगवान जो है, ये उदाहरण दे सकते हैं श्रीला प्रभुपाद का। मात्र 40 रुपया ले जाके 108 मंदिर का निर्माण किए। बोलते थे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान कर रहे हैं। 69 में वो बाहर जाके 169 12 साल में मात्र जो है 108 मंदिर का जो है निर्माण किया। हम लोग जो है एक घर बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। सो देन
लोग क्या करते हैं, अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोग जाएंगे, ये सकाम कर्म हो गया। हमने 3 कहानी सुना। स्वर्ग लोग जाने के बाद भी सेफ्टी नहीं है। जिस तरह आप दूसरा लोग जाते हैं, इफ यू गो फ्रॉम इंडिया टू आउटर कंट्री, व्हाट हैपेंस, यू रिक्वायर वीजा एंड मनी। Anything, your visa is over, you need to come back to your the country, or money is over, you need to come back to your the country. Similarly, if your punya is getting finished, you need to come to this material world. If you have done papa, sometimes you say people are born andha, no leg, no hand. Why it is there? Punya karam nahi hai, paap karam hai. So Krishna is saying in this one, त्याग दो किसको, सकाम कर्म योग को। इन श्लोका इट्स टॉकिंग अबाउट धनंजय। सो इट्स सेइंग जो मनुष्य धन पे विजय प्राप्त कर लिया है उसी को धनी पुरुष कहते हैं। दोज पीपल हु आर एबल टू have conquered the wealth. That's the reason Krishna here Arjuna is also talking here in this shloka is saying Dhananjaya. Krishna calls him Dhananjaya. Krishna is telling Arjuna to use his buddhi not to do sakam karma, इससे दूर रहो। सकाम कर्म से दूर रहो, क्यों? क्योंकि उससे फल के बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए इस कृष्ण सिंह दूर दूर ही नहा। Then is saying Buddhao Saran Anvicha, take shelter of Bhakti Yoga, take shelter of me। जो भी आप काम करो उसको निष्काम कर्म योग करना है। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति जो है कृष्णा भावना अमृत में अर्जित करना चाहिए, उसी से उसका जीवन जो है सफल हो सकेगा। दिस इज वेरी वंडरफुल श्लोका विच टॉक्स अबाउट कृपणः। इसके जो हमारे आचार्य जो है अलग अलग अर्थात जो है मीनिंग बताते हैं, इसको हम समझेंगे तो फिर हमें ये पूरा श्लोका जो है समझ में आएगा। कृपणा फला हेतवा, कृपणः का मतलब क्या है? माइजर्स। माइजर्स का क्या मतलब होता है? है ना, कंजूस का क्या मतलब होता है? पैसा नहीं खर्चा, चोरे खर्चा कराएगा, अपना ही पैसा नहीं खर्च करेगा, बोलेगा बिल्कुल। 5 ये बड़ा है। बिल्कुल सही। आज हम लोग 6 तरह का इसका मीनिंग देखेंगे। कृपणा का जो हमारा जो आचार्य जो है बताते हैं। और क्या बोल रहे हैं? फला हेतवा, ये हम सभी के अंदर में है। हम जो भी काम करते हैं हाँ, फल की इच्छा करते हैं। प्रभु से मैं डिस्कस करता, गुरु गौरंगा प्रभु मुझे पॉइंट्स बता रहे थे कि इवन इफ यू आर गोइंग टू ऑफिस आल्सो व्हाट वी आर डिजायरिंग, मनी। एनीबॉडी वांट्स टू वर्क फ्री? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। फल की तो चिंता कर रहे हैं ना, पैसा नहीं दे रहा तो फ्री में काम करेगा कोई? हम तो नॉलेज गेन करने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं? पहले बैंक में चीफ मैनेजर था, चीफ मैनेजर थे ना, तो आपको गाँव में था, गाँव में। तो आपको पैसा मिलता था? हाँ, सैलरी मिलता। बिना सैलरी का काम करते हैं आप? क्यों करूँगा सर? दैट इज माय राइट। वही बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, उसमें कौन काम करे? तो वही जब हम सैलरी जब मिलता है, जब नहीं मिलता है या प्रमोशन का मान लीजिए ड्यू रहता है, नहीं मिलता तो हमारा मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो हम इसी के लिए कर्म के बंधन में हम बार बार फंसते रह जाते हैं। भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, यहाँ पे इसलिए बोले कृपणा फला हेतवा। तो बोल रहे जो लोग है ना सकाम कर्म की अभिलाषा रखते हैं वो लोग क्या है? कृपणः है। क्यों? यहाँ पे जो लास्ट में जो है फला हेतवा, दोज डिजायरिंग फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स इज नोन एज सकाम कर्म योग, नॉट निष्काम कर्म योग। तो इसलिए हम फल की चिंता कर रहे हैं। हम लोग जल्दी से ये 6 मीनिंग समझते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर जो है लेंगे। पहला अर्थात जो है कृपणः का एक होता है जो बोलते हैं निर्धन। निर्धन मीन्स गरीब, पीपल हु आर वेरी पुअर। ऑपोजिट ऑफ पुअर इज वेल्दी, धनवान, है ना। So Arjun here in the shloka is known as Dhananjaya. So Dhananjaya means who have won wealth. That's the reason Arjuna was known as Dhananjaya. So with that wealth, what Krishna is telling him, by Buddhi Yoga. By Buddhi Yoga, by giving wealth. So if you are having wealth, if you are earning money, आपके पास धन जो है वो कौन दे रहा है? भगवान की सेवा में ही लगाना है ना। पहला चीज ये हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो लोग निर्धन हैं उन लोगों को उनकी वैल्यू क्यों पता नहीं है। जो लोग कभी पैसा नहीं देखे हैं उनको 100 रुपया अगर आप दे देंगे तो उसको पता नहीं है ना कैसे खर्च करना है, क्योंकि वो निर्धन है। तुमको पता ही नहीं है कि इसको कॉस्टली चीज दे देंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, सोना क्या कहता है, सोना का वैल्यू जानता है। हाँ, एक व्यक्ति जो है मान लीजिए मिट्टी, उसको सोना नहीं मालूम है, कभी देखा नहीं, उसको सोना दे देगा तो क्या सोचेगा वो? कोई भी कॉस्टली चीज दे देगी उसको नहीं समझ में आएगा।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोज पीपल विल वेस्ट मनी। वो सोना लेके क्या करेगा, मान लीजिए एक लोहार को सोना दे दीजिए, उसको उसको नहीं मालूम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे लेके पीटने लगेगा। सोना से लेके पीटने की चीज है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कॉस्टली चीज है, द पर्सन हु डजंट नो द वैल्यू ऑफ दैट, व्हाट ही विल डू, ही विल आइदर वेस्ट इज और अदर ही विल एंजॉय। सो जो मनी है, जो धन है, उसको हम क्या करते हैं, भोगते हैं। कैसे भोगते हैं, गलत चीजों में हम लगाते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वही सेम मनी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस तरह वो सेम काम, जो एक ही मनी जो है कृष्णा भावना अमृत में बन जाएगा। शिला प्रभुपाद बताते हैं, जो मूर्ख लोग है, जो मूढ़ा है, वो पैसा को जो है गलत वे में लगाते हैं। उसी तरह सबसे ध्यान से सुनिएगा, कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, जो स्टार्टिंग हम लोग किए थे 84 लाख योनि से बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इज देयर, वी शुड यूज अवर बॉडी टू नो कृष्णा, एल्स वी आर ऑल्सो नोन एज निर्धन। इफ वी डोंट यूज अवर बॉडी, अगर हम अपना शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो हम भी गरीब है। क्यों गरीब है, क्यों के लिए हम अपना इस शरीर को किस में लगा रहे हैं, आहार निद्रा भया मैथुन, यही 4 चीज हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। खाना सोना, रक्षा करते हैं अपनी और परिवार की, और क्या करते हैं, संभोग करते हैं। अजमिला की स्टोरी आप सभी सुने हैं, मैं इसमें जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं। अजमिला की स्टोरी को सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हमें एक नया अवसर मिला, सेकंड चांस मिला है। हमें 84 लाख पर चांस मिला, सेकंड चांस नहीं। कई बार बोलते हैं कि अजब मिला के लिए हमको नहीं, हमको भी चांस मिला है। तो इससे क्या होता है, दूर ना ही दूर से ही ऐसे एक्टिविटी को जिसमें फल की अपेक्षा करते, इसको त्यागना है ना। जो निंदय है, जो बहुत जो है खराब है, उसको त्यागना है। और हमें क्या करना है, 4 नियम का पालन करना है। क्या है, को ना मांसाहार करना है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, कोई भी जुआ नहीं खेलना है, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई भी मदिरा पान नहीं करना। चौथा जो है, नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध जो है नहीं रखना। तो ये 4 जो है नियम जो है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये 4 नियम अगर कोई पालन करता है, 16 माला जप करता है, इसी जीवन में जो है भगवान के धाम जो है आप जा सकते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कहा है। तो हमें उस पर आस्था होना चाहिए। तो पहला अर्थात हो गया निर्धन। दूसरा अर्थात जो है अभागा। अभागा का अर्थात होता है, दोज पीपल हु आर नोन एज सकाम कर्मी, दे आर नोन एज अभागी। काहे अभागा का अर्थात होते हैं, these people they want to enjoy, they want happiness in their life, सुख प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, बट होता क्या है, दुखी मिलता है। we give this 3 example, they did so many of तपस्यास for so many years, अंत में क्या मिला। so whether it is family, whether it is children, whether it is money, whether it is house, everything and anything we will leave here and will go, even our body also, we understand. So he's saying, Narottama Das Thakur says, he's our acharya who has written lot of bhajana. He's saying, हरि हरि विफले जन्मा गौनाइनु, मनुष्य जन्मा पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। इससे जो लोग राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, जानबूझ के क्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। Say, oh Hari, I have spent my life uselessly, having obtained a human birth and not worship Radha Krishna. I have knowingly drunk poison. तो मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, वो अगर हम राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, तो उन जान मुझके, तो इसलिए हम अभागा हैं। कितने सारे लोग हैं, देखिए संडे के दिन जो है, इतने सारे यहाँ पे एचएसएल में कितने लोग जो है सत्संग आके कर पा रहे हैं। आप लोग भाग्यशाली लोग, आप लोग बहुत है, जो फॉर्चुनेट पीपल आर देयर दैट वर कमिंग एंड टेकिंग द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज एंड हियरिंग ऑन संडे दिस भगवत गीता। दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू टेक, दो दे हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इज नोन एज अभागा। थर्ड मीनिंग इज सत्य असत्य विवेक शून्य। व्हाट डज इट मीन, सत्य असत्य विवेक शून्य? दैट मीन्स सही क्या है, गलत क्या है, दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू रिकॉग्नाइज, है ना। जिस तरह गोल्ड के एग्जांपल दिया, उसको पता नहीं कि ये गोल्ड है कि उसको सही क्या है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसको बोलते हैं विवेक शून्य। सत्य असत्य मीन्स राइट रॉन्ग, विवेक शून्य मीन्स ही डजंट नो। So, जो person is mentioned, if you are facing Krishna, then you are doing devotional service. If you are not facing Krishna, then you are facing Maya. That means every person here क्या चाहता है, सुख भोगना चाहता है, लेकिन सुख भोगने की इच्छा रहती है। और यहाँ पे हमारे आचार्य जो इसकी तुलना करते हैं मृग से। मृग मतलब हिरण।
हिरन में रहते हैं ना, हिरन क्या करता है रेगिस्तान में या जो रहता है, जो भी व्यक्ति रहता है क्या ढूंढता है, जल ढूंढता है। अब मीरा जाता है लेकिन देखता है मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता है। तो उसी तरह हम भी क्या है, कुछ समय के लिए इस भौतिक संसार में आए हैं, यहाँ पे हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सब यहाँ पे ही हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। चौथा जो मीनिंग है सकाम कर्मी जो बोलते हैं, जहाँ रहते हैं दुष्ट, दुष्टिया मीन्स जो सकाम कर्मी होते हैं वो भगवान के क्या करते हैं, शरण कभी नहीं लेते हैं। भगवत गीता के 7 चैप्टर में जब हम आएंगे, कौन से 4 लोग हैं जो भगवान के भक्ति के शरण में आते हैं और कौन से लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, है ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो सकाम कर्मी होते हैं वो भगवान के शरण नहीं लेते, बोलते हैं दोज पीपल हु हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, क्या मिले आपको, जो मिला है, ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं वो दुष्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं एहसान फरामस होते हैं। Suppose if you have given shelter to somebody, if you have given some money to somebody, he is not recognizing your help, what you have done. तो इसको क्या बोलते हैं? Is not thankful to me. इसको हिंदी में बोलते हैं एहसान फरामस। तो उसी तरह जो एहसान फरामस होते हैं उसको दुष्टे में कहते हैं। जो व्यक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण जो शरीर हमें दिए हैं, अगर हम उसकी सेवा में नहीं लगाते तो हम दुष्ट हैं, इसलिए हम लोग जो है कृपणाह है। ठीक है? कैसे हम भूल गए हैं कि कृष्ण जो हमें मनुष्य का शरीर दिया है, बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मा मिला, मैंने भगवान को भुला दिया, बॉडी बॉडी को क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। किसके लिए? अपने इंद्र तृप्ति के लिए। और जो हमको लगता है कि ये बॉडी हमेशा मेरे साथ रहेगा, हम देख सकते हैं हमारे दादा दादी चाचा दादी परदादी भी कहाँ है पता नहीं है। लास्ट जो है, जो इस श्लोक में जो है कृपणा का मतलब जिसको माइजर कहते हैं, प्रभु जिसे कहते हैं कंजूस। पांचवा जो मीनिंग है उसको कंजूस कहते हैं। देखते हैं व्यक्ति के पास बहुत धन रहता है, व्हेन वी गो फॉर, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, हम लोग अभी सभी से कलेक्शन करने के लिए जाएंगे, प्लीज गिव सब डोनेशन फॉर जन्माष्टमी, वी आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी। तो बोलेंगे इतना पैसा भी रहेगा, बोलेंगे अभी नहीं है। तो एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, वो ही यूज्ड टू कलेक्ट ऑल द मनी एंड कीप इन अलमीरा, अलमीरा में रखता था पैसा, और खुद जो है फटे कपड़े पहनता था, है ना? जब उसकी पत्नी और बच्चे आते थे बोलते थे प्लीज गिव मी सम मनी, तो वो क्या करता था, जाता था अलमीरा खुलता था, पैसा को देखता था, खुश हो जाता था। पैसा को देखता सभी पैसा जो है मेरा यहाँ पे हाँ सेफ है, बच्चे को नहीं देना, खुद भी पढ़े रहेंगे चलेगा। तो ये उस तरह से वो क्या करता था, वो पैसा को देख के आनंद महसूस करता था। सेम चीज हमारे आचार्य बोलते हैं, ही डजंट नो हाउ टू इन्वेस्ट द मनी। अगर वो पैसा को इफ ही कीप्स इन द बैंक, व्हाट विल हैपन, द मनी विल मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? सो तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो कभी भी उस बॉडी को, जो धन के समान है, दिस बॉडी इज ऑल्सो नोन एज वेल्थ विच इज गिवन बाय कृष्णा, उसकी सेवा में हम कभी नहीं लगाते हैं। शिला प्रभुपाद से ऑलवेज एंड एवरी टाइम वी आर सर्विंग वन और द अनदर। इफ यू आर नॉट सर्विंग अदर्स पीपल, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर, हम क्या कहते हैं, कुत्ता बिल्ली पाल लेते उसकी सेवा कर रहे हैं, सेवा के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो लोग नहीं जानते कि बॉडी को किस तरह से जो है उसको भगवान की सेवा में लाए। तो बॉडी, श्रीला प्रभुपाद सेज, दिस बॉडी इज अवर रियल वेल्थ, दिस बॉडी इज रियल वेल्थ, वी कीप दिस बॉडी एट द एंड। और क्या होता है, हम सोचते हैं ये बॉडी हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अंत में क्या होता है, ये बॉडी समाप्त हो जाता है, जगह होते हैं चाचा या पापा चल बसे, यही बोलते हैं हम लोग, है ना? तो इसलिए जो यहाँ पे बोल रहे हैं, जो कृपण होता है वो ये नहीं जानते कि इस बॉडी को किस तरह भगवान की सेवा में हम जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होता है यहाँ पे भगवान नेक्स्ट श्लोका में ही बताते हैं, दोज हु आइडेंटिफाई जीव स्वरूप होय कृष्णा नित्य दास, वो क्या है, वो दोज पीपल आर बुद्धिमान, दोज पीपल आर इंटेलिजेंट, है ना? और इस श्लोक में और एक आता है, एक और कहानी में सोचा था बट समय हो गया, मैं इसमें नहीं आएंगे, उसका सारांश लेता। जनक महाराज के ऊपर में है। जनक महाराज जो है गाय लेके आते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, और उसमें कहते हैं कि जो भी इस उनके क्या कहते हैं, गाय जो रहता है क्या करता है, सोना से सुसज्जित रहता है, उसके जो सिंग रहते हैं, पाँव रहता है चांदी से रहता है, और चादर भी जो रहता है पूरा इस तरह से रहता है, ठीक है? तो फिर क्या रहता है, उनसे पूछते हैं कि एक सवाल पूछते हैं, बोलते हैं जो भी ये सवाल का जो है उत्तर दे देगा वो सभी जो है
ले जा सकते हैं, तो कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है, तो 2 बार पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं देता। तीसरा बार ये ब्राह्मणा जो है उत्तर देता है, वो बोलता है मैं है, बोलता है सारी गाय को ले जाते हैं। तभी सारी ब्राह्मणा जो है वहां पे उसका प्रश्न करते हैं कि आप क्यों ले जा सकते हैं, हम लोग भी, हमारे अंदर भी गुण है वो। तो यहाँ पे उस समय जो है कृपणहा का मतलब बताते हैं। वहां पे कृपणहा का मतलब होते हैं कि जो बुद्धिमान इंसान जो रहता है वो अपना शरीर को जो है, जो ब्राह्मणस ब्राह्मणस जो रहता है वो क्या करता है, भगवान की सेवा में लिप्त रहता है। जो सेवा नहीं करते वो कृपणा है। वहां पे एक जो है, ये मैं डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट में ये वाला बता रहे हैं। तो इसमें जो बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान का जो बोलते हैं, जो उद्धार होता है, जो ब्राह्मणा होते हैं, दैट पीपल सरेंडर टू द गॉड, जो भक्ति में नहीं लगते हैं वो लोग क्या होते हैं, कृपणा होता है। श्लोक के अंत में भी यहाँ पे बोलते हैं। और अंत में जो है एक मीनिंग जो होता है कृपणा का मतलब होता है लालची। कोई मजे हो गया कहीं, लालची उतना कंजूस हो गया, ग्रेडी हो गया। लालची का मतलब क्या हो गया, जिसके पास दोज पीपल हैव लॉट ऑफ वेल्थ बट दिस पीपल आर नॉट संतुष्टा, contented, they are not contented, दे आर मोर ग्रीडी। satisfied. बोलते हैं ना, नरक के 3 ही द्वार हैं। कौन से वो 3 द्वार हैं? नरक के 3 द्वार है, वही है, लालची, ग्रीडी, पापी, काम, क्रोध, लालच। ये 3 द्वार है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। 10 रुपया कमाते हैं तो क्या होता है, भगवान 15 रुपया दे देंगे तो मस्त हो जाएगा। 15 रुपया मिलता है तो फिर क्या होता है, 20 रुपया मिल जाए। हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। एक बच्चा है तो 2 बच्चा, 2 बच्चा है तो 3 बच्चा, तो इस तरह से कोई भी लाइफ में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, एक गुलाब जामुन मिला तो एक गुलाब जामुन नहीं, 2 गुलाब जामुन चाहिए। तो हम लोग कभी भी जो है संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्या बोलते हैं, पेप्सी का जो है ना ऐड आई है, दिल मांगे मोर, तो हम लोग ये बोलते हैं हमको और थोड़ा चाहिए, और चाहिए। एक हाथ में पूरा भरा हुआ है, फिर भी हम क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। जो पक्षी होता है बाहर में, आप देखेंगे जब चावल रहता है ना, उसको खा के उड़ जाएगा। कोई मनुष्य जब जाएगा तो चावल को क्या करेगा, पहले बैठ के खाएगा, पॉकेट भरेगा, आगे कभी सोचेगा बाल बच्चे को भी ले आके देना है। ये मनुष्य की स्वभाव ये होता है कि वो संतुष्ट कभी भी नहीं रहता है। बोलते हैं, जितना भी मिलता है उतना क्या होता है उनके लिए कम है। तो हमेशा क्या करते हैं हम अपने लाइफ में, हम मैं भी अपने आप को भी देखते हुए, हम हमेशा धन के पीछे भाग रहे हैं, तो ये जानते हुए भी कि ये धन सारी चीज यहीं पे ही छोड़ रहा है। तो हम कभी भी क्या है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट संतुष्ट। हम क्या करना चाहिए, हमेशा रहते हैं। तो बोलते भगवान से कृपणः फला हेतवः, कृपणा माइजर पीपल दोज डिजायरिंग फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। यहाँ पे बोल रहे हैं जो लोग अपने कर्म की फल को भोगना चाहते हैं, उसे बदले में और चाहिए। वी आर डूइंग ना, वी आर वर्शिपिंग ऑल्सो, हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्यों? कभी कभी हम करते हैं 2 रुपया चढ़ा रहे हैं, हमें इतना चाहिए, तो ये क्या होते हैं, बदले में एक्सरसाइज करते हैं, वी आर नेवर नेवर सेटिस्फाइड। तो मैं अंतिम में एक छोटा सा बोल के मैं समाप्त करता हूँ। तो हमें भक्त प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति में उनसे साहस लेना चाहिए। वी शुड डू भक्ति लाइक प्रहलाद महाराज। हाउ? भक्त प्रहलाद महाराज, when Narasimha Dev killed Hiranyakashipu, he asked Prahlad Maharaj, what do you want? Bhakta Prahlad Maharaj, he asked, what do you want? Bhakta Prahlad Maharaj didn't said anything. What he said? He said, there are my fathers who you have killed. There are other peoples are there. भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं हम लोग क्या रहते हैं, जो भी देखेंगे क्या बोलते हैं, भगवान अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा हेल्थ देना, अच्छा बॉडी है, जिनके पास लाइक समटाइम्स वी टॉक अबाउट हेल्थ आल्सो, बट वी नी अंडरस्टैंड जिनके पास नहीं है उनको उससे वैल्यू पूछिए। जैसे लोग 10 जूता जाके खरीदते हैं, जो लंगड़े हैं उनसे जाके पूछिए क्या वैल्यू है उनके पैर की। तो हमारे शरीर में सभी सही से है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वही शरीर जो मिला भगवान की सेवा में जिसके लिए मिला, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि भगवान मैं ही आपके धाम नहीं जाऊं, जितने भी लोग हैं वो भी आपके धाम जाएं। तो यहाँ पे बोलते हैं अपने दुख को सबसे बड़ा दुख ही मानते हैं, और भक्त जो होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे मुरली प्रभु, गुरु गंगा प्रभु एवरी संडे इज कंडक्टिंग दिस ऑल क्लासेस। So what you can do is there, at least come every Sunday and take the association। और अकेले नहीं आना है, बाकी लोगों को भी लेके आना है। क्या पता आप जिसको लेके आए वो आगे चल के बहुत बड़ा भक्त बन जाए, वो भगवान के धाम चल जाए। क्योंकि आप लेके आए थे, बोलेंगे ये माता जी या ये प्रभु जी लेके आए थे, तो उसके साथ तो आप भी चल जाएंगे ना। कमीशन तो मिल ही जाएगा ना, कमीशन तो मिलेगा ही ना। क्या कमीशन है, वो भगवान के धाम चलेगा। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम जाएं, हमें अपना परिवार के बारे में ही नहीं सोचना है। वासुदेवा कुटुंबः, ये जो संसार है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पूरे परिवार है।
सबको लेके जाना, अकेले लेके नहीं जाना है। हरि बोल। तो यही मिलेगा, भक्त जो होते हैं वो बहुत उद्धार होते हैं, वो कंजूस नहीं होते हैं। रिटर्न क्या मिलेगा? सेटिस्फाइड रहेगा। तो सब बोलते हैं ऐसा महात्मा जो होता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सह महात्मा दुर्लभा, जो सभी में जो रहते हैं दूसरे कर देते हैं। तो यहाँ से जो है मैं समाप्त करता हूँ। किसी का जो प्रश्न है वो मैं लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी आप काम करते हैं, अगर भगवान को मध्य में रखते हुए अगर काम नहीं करते, तो वो कर्म के बंधन में आपको बांधेगा। मतलब आपको कर्म में मिलेगा या अकर्मा मिलेगा, विकर्मा नहीं मिलेगा। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होगा? आपको विकर्मा मिलेगा, सॉरी अकर्मा मिलेगा। अब भगवान के धाम जो है आप जा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।